Okay. So, as per the new guidelines of dissertation, you are supposed to make few different things. Now, what does this guideline say? Let me read for you. The guideline says that first, you need to do this project where you want to work to understand the sector. Okay. So, for example, let's take an example that I want to work with FMCG sector. Okay. So, about the industry, I'll have details of FMCG sector, industry name FMCG, brief description about the industry in the world, in India, the SWOT analysis of FMCG industry, companies that are doing good as per this 5 force model of FMCG sector, information about current job preferences and industry with source you need to give, and information about impact of AI on the job. Now let's take an example that I my dream company is ITC. So, and I want to work for ITC. So about the company, it will come the ITC. I need to select two companies. If I want to work for ITC and Britannia. Okay, so I'll brief about ITC and Britannia as they are the public leading companies in FMCG sector. Research methodology I have shared with you. On the basis of this data, I'll have a secondary from their website that what kind of jobs are available uh, with this companies for the profile of MBA. Okay, then I'll select some few peoples. Now, when I select people, I need to do 5 to 7 interviews. So one can be from ITC, one can be from Britannia. Now I need to find out parallel companies also which will be doing which are into FMCG sector. So let's take the I take the interview of somebody working in Parley. I take the interview of somebody working in HUL. I take the interview of somebody working in PNG because these all are FMCG companies, or say Tata Consumer. Okay. Now I'll contact them through LinkedIn. I'll take the interview. I'll make the transcript, and from transcript I'll make this table. Okay, and this after having this table I will prepare my project. Okay, so here the project actually ends. Now let me say that if I want to do the interview of somebody working in ITC in Britannia, as I am keen to work with FMCG sector as a sales executive after doing an MBA. So what I'll do, I'll select these things. Okay, Control C. I'll go to ChatGPT. I'll paste this. I'll write, I want to take interview of uh, people working in ITC and Britannia. Give me list, or working in FMCG sector. I can write over here FMCG sector in companies like ITC and Britannia. Give me list of questions from the from the below details. Okay, so now this will give me list of. Now these questions are the questions that I need to ask in the personal interview to the person whom I'm interviewing. So there are about, say, 23 questions that I need to ask. Now what I'll do, I'll copy these questions because this I need to keep it in appendix. So Control C, I'll have a new Word file. I'll have a new Word file. I'll paste it. Okay.
So these are the questions I'm supposed to ask to the person working in ITC, Britannia, HUL, PNG, and Parle or Tata Consumer. Okay. So 6 interviews I need to conduct, and these 6 interviews should have these questions, these 23 questions, because from this the table will be formed. Okay. So this is how I created the questionnaire. Now these questions I need to ask to people. हेलो. ओके. तो अभी जैसे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 5 लोग, 5 अलग अलग कंपनी से इंटरव्यू किए. ठीक है. और मैंने इनकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई. इंटरव्यू विद कपिल राठी, ASM ITC. ये मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, ये उसने आंसर दिया. ये ट्रांसक्रिप्ट बनाना बहुत जरूरी है. ये ट्रांसक्रिप्ट फोटोग्राफ के साथ आपको अपेंडिक्स में डालना रहेगा. ठीक है. अपेंडिक्स के अंदर ये देखिए 5 के मैंने लिए हैं. ब्रिटानिया, काजल पटेल, ये लिंक्डइन से ही मैंने ढूंढे थे और उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली थी. वी हैव कोमल राठौड़, PNG. फिर प्रजापति, धार्मिक प्रजापति, ASM HUL. फिर पार्ले का ASM. इन सबसे मैंने लिंक्डइन पे अपॉइंटमेंट ली थी और मैंने ये सारा जो है डेटा मैंने क्रिएट किया. और ये डेटा में से मैंने ये क्रक्स बनाया, जो टेबल जो आपको चैप्टर नंबर 6 में बोला गया है. ठीक है. इस टाइप का मैंने एक टेबल बनाया, कंसिडरिंग द इंटरव्यूज दैट आई हैव टेकन. ओके. यू कैन यूज द प्रॉम्प्ट टू डू दिस थिंग, और ये अच्छे से एक टेबल ऐसे बन जाएगा. ठीक है. तो यहां तक का आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो. ओके. सो अब हमारे पास ये टेबल आ चुका है और मेरे पास इंटरव्यूज आ गए हैं जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट बना दिया है. इस फाइल को हम डालेंगे अपेंडिक्स में. ठीक है. अब इसमें से रिसर्च कैसे डेवलप होगा. मेरे पास एक फाइल है जो मैंने ऑलरेडी इसमें डाली हुई है पहले से ही. ठीक है. तो यहाँ से मेरा काम आसान हो जाएगा. आप भी ये यूज कर सकते हो. सारे इंटरव्यूज की ट्रांसक्रिप्ट और ये टेबल अलग अलग तरीके से अगर आप डाल दो इसमें, तो फिर आपको आउटपुट अच्छा खासा मिलेगा. सो लेट मी सी नाउ कि हमारा फॉर्मेट क्या कहता है. ये वाला. ठीक है. इसका टाइटल है. अब बेस्ड ऑन दिस आई कैन से दैट गिव मी अ नाइस research paper title from the above text. तो हम ये देखिए, मेरा था सेल्स एग्जीक्यूटिव FMCG सेक्टर, या फिर ये. ठीक है. तो हम दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे. Ctrl+C. वर्ड में जाएंगे. न्यू, अरे सॉरी, न्यू फाइल नहीं करेंगे. इसी में ही हम पेस्ट करते वक्त ये वाला बीच वाला मर्ज फॉर्मेटिंग वाला यूज करेंगे, ताकि हमको और चेंज ना करना पड़े. ठीक है. ये यहाँ पे पेस्ट हो गया. अब हम इससे एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं. सबसे पहली चीज जो हमें मांगनी है, गिव मी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ 200 words on the same with keywords. अब ये मुझे एब्स्ट्रैक्ट दे रहा है कीवर्ड्स के साथ. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट को हम यहाँ से Ctrl+C कॉपी करेंगे, हमारी वर्ड फाइल में जाएंगे, यहीं पे ही हम इसको सिलेक्ट करके
पेस्ट करने के लिए अगेन मर्ज फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। सेम चीज है, अब हम जाएंगे वापिस कीवर्ड्स में। हम गए, इसको यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी किया, हम गए हमारे कीवर्ड्स में और यहाँ पे जाके मर्ज फॉर्मेटिंग से हमने पेस्ट कर दिए। हमें यहाँ से ये 40 निकाल देना है। ठीक है, ये हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट रेडी। अब हमें इंट्रोडक्शन रेडी करना है। सेम हम कमांड देंगे, फ्रेम इंट्रोडक्शन फॉर द रिसर्च पेपर मेंशन्ड अबव। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन फ्रेम कर रहा है। इतना ही। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, गए हमारी वर्ड फाइल में, इसको हमने सिलेक्ट किया, मर्ज फॉर्मेटिंग से पेस्ट कर दिया और इसको हमने सिलेक्ट करके कर दिया जस्टिफाइड। बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, अब हमें रिसर्च गैप डेवलप करना है, तो हम वापस इसको प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, डेवलप ए रिसर्च गैप फ्रॉम द above for 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 the research paper mentioned above। ये देखिए, ये आपका रिसर्च गैप फाइनलाइज कर रहा है। ये जितना भी उसने दिया है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, जाएंगे हमारी वर्ड फाइल में, यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट अगेन मर्ज फॉर्मेटिंग वाला करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने हैं, कंट्रोल सी, डेवलप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सेम रिसर्च पेपर्स। यहाँ पे एक देना है, कीप इट गिव ओनली 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स। हमने जानबूझ के 3 से 4 ही रखा है, हमको इतना ज्यादा नहीं चाहिए, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, गए हमारे रिसर्च पेपर वाली फाइल में, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग हमें करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके। और इससे बोल्ड हम हटा देंगे। सेम वे नीड एनालिसिस में जो भी चीजें बोल्ड है वो हम हटा देंगे, इसको जस्टिफाइड कर देंगे। सेम वे फॉर दिस रिसर्च गैप ऑल्सो, बोल्ड हटा देंगे, जस्टिफाई कर देंगे सारी चीजों को। कोई भी जस्टिफाइड नहीं है, सिलेक्ट करके जस्टिफाइड। रिसर्च गैप को हमें बोल्ड रखना है। हम्म और इसको सेव करते जाएंगे। लिटरेचर रिव्यू के लिए मैं consensus.ai का एक वीडियो शेयर करूंगा, वो उसमें से लेना है। हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पे डला हुआ है। मैंने टोटली 5 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा और सारे के सारे जो है वो अहमदाबाद में बेस्ड है। ये मैंने डाल दिया। अब ये वाला टेबल, ठीक है, ये वाले टेबल के लिए हम जाएंगे हमारे, जो हमको टेबल यहाँ से क्रिएट करके दिया है, दिस वन, ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे पूरा, कंट्रोल सी,
ये हमने पहले से ही बनाया हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर। कंट्रोल वी। एक बार देख लेंगे रिपीट तो नहीं हो रहा है। आईटीसी ब्रिटानिया, पीएनजी, एचयूएल, पार्ले एग्रो, मेरिको, आईटीसी, यहाँ से रिपीट हो रहा है तो यहाँ से ये डिलीट कर देंगे। डिलीट रो। ठीक है, हमारे पांचों के पांचों जो थे वो आ गए इधर। डेवलप बाय रिसर्च फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ये हमने ले लिया। अब नेक्स्ट कमांड। ओके, तो अब ये डिस्कशन पार्ट आ गया। अब हम डिस्कशन फ्रेम करेंगे। डिस्कशन यहाँ से कॉपी किया, गए हमारे कमांड में, राइट है डिस्कशन फॉर द सेम रिसर्च पेपर। ये उसने डिस्कशन लिखना चालू कर दिया है। तब तक हम एक और कमांड पकड़ लेते हैं यहाँ से, जो है थियोरेटिकल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर द स्टडी, तीनों एक साथ दे देंगे कमांड। राइट दीज थिंग्स, इधर दीज थिंग्स कर देंगे फॉर द सेम रिसर्च पेपर, और यहाँ से हमने कमांड लॉन्च कर दिया। अब इसको हम कॉपी करेंगे डिस्कशन को, कंट्रोल सी। हम गए हमारे पेपर में, ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब कंक्लूजन होता नहीं है तो हम ये यहाँ से कंक्लूजन वर्ड हटा देंगे, क्योंकि कंक्लूजन हम लास्ट में दे रहे हैं। तो यहाँ से खाली कंक्लूजन वर्ड को हटाएंगे। बाकी अब हम वापस जाएंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, जहाँ पे थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन उसने लिख लिए हैं। कंट्रोल सी करेंगे, गए हमारे पेपर में, यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। ठीक है, अब आ गए हमारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। यहाँ से हम लेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, कंट्रोल सी, गए हमारे पेपर में, और यहाँ पे हमने डाल दिए। अगेन डिस कंक्लूजन और रिकमेंडेशन हमारा रेडी है। यहाँ पर मैं कंट्रोल सी किया, कंक्लूजन को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड द लास्ट पार्ट हमारा रिकमेंडेशन, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, फाइल, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। रेफरेंसेस ये सारे के सारे आपको रखने हैं। इसके साइटेशन आपको डालने पड़ेंगे, तो साइटेशन की फाइल में अलग से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, साइटेशन आपको कहाँ कहाँ डालने हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू में आपको साइटेशन डालने हैं सारे के सारे, ऑल 55 साइटेशंस। आई थिंक 55 है।
133 है, नहीं इसमें से 55 वाली एक फाइल है मेरे पास, वो मैं आपको भेजता हूँ। वो सारे साइटेशन आपको उसमें डाल के कंप्लीट करना है। इसको हम कंट्रोल S कर देंगे। अब जो भी चीज़ हमने चैट जीपीटी से क्रिएट की है उन सबको हम मैन्युअली पैराफ्रेज करेंगे, जिसके लिए एक वीडियो है वो भी मैं इसमें शेयर कर देता हूँ। और ये जैसे रिसर्च पेपर खत्म होता है आपको सबमिट करना है, मेरी तरफ से एक मोबाइल नंबर मिलेगा, वहां पे आपको भेज देना है तो पब्लिश हो जाएगा। सो विद दिस ये काम हमारा हो गया। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ साइटेशंस देने हैं रिसर्च पेपर में। साइटेशंस कहाँ देने हैं? रिसर्च पेपर में, अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये आपको दिख रहा है, विदानी 2015, विदानी सोलंकी 2015। ये कहाँ पे दोगे आप? इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक से लेके लिटरेचर रिव्यू में। रिसर्च मेथोडोलॉजी में, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आना चाहिए साइटेशन। इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में, ये दो ही जगह पे आपको साइटेशन डालने हैं। सारे साइटेशन, ये पूरी लिस्ट में आपको दे रहा हूं, ये सारी लिस्ट है, ये साइटेशन आपको डालने हैं। ठीक है, इसको कहीं रिपीट मत, जैसे ये आपने यूज कर लिया फिर इसको दोबारा रिपीट मत करना। इसको एक बार यूज कर लिया, इसको एक बार यूज कर लिया, इसको एक बार, यानी सबको एक एक बार आपको कहीं ना कहीं आपको साइट करना है रिसर्च पेपर के अंदर। ये देखो यहाँ पे उसने एक बार ये यूज कर लिया, यहाँ पे उसने एक बार यूज कर लिया, अब ये रिपीट नहीं करना है बस। ये कितना हाइपोथेसिस है ऑलमोस्ट, अरे सॉरी कितना रेफरेंसेस है? कुछ 41 रेफरेंसेस है जो आपको ऐड करने हैं आपके इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में, रिसर्च पेपर के अंदर, प्रोजेक्ट में नहीं। रिसर्च पेपर के अंदर आपको ऐड करने हैं। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस पूरा होता है उसके बाद ये, और फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद नहीं करना है, फुल स्टॉप के पहले करना है। और एक सेंटेंस में एक ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो ये लिस्ट है, ये लिस्ट में से आपको ये सारे के सारे यूज करने हैं एक एक बार, हर एक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में या इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में। दो जगह पे आपको ये सारे हाइपोथेसिस सॉरी ये सारे साइटेशंस दे के आपको पूरा करना है। ठीक है, और ये करके ही आपको रिसर्च पेपर सबमिट करना है। इसके इसके ये अगर नहीं होंगे तो मैं रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, एंड फॉर प्रोजेक्ट चैप्टर 2 में लास्ट पार्ट है स्वॉट एनालिसिस ऑफ द कंपनी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट ऑफ द कंपनी, चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट है। और बिब्लियोग्राफी के पहले और कंक्लूजन के बाद लर्निंग फ्रॉम एसआईपी आप लोगों को डालना है, वर्ड फाइल में भी, और पीपीटी में तो है ही है पर वर्ड फाइल में भी डालना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये आप कंप्लीट करके ही रिसर्च पेपर मेरे साथ शेयर करना। ओके, ऑल द बेस्ट।